اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. مظلوم کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا, یقین اعظم ہوتا ہے اور بے چین دل ہوتا ہے. یاد نہیں بڑھی اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے. قرضے کے لیے ایک دعا ہے, جو بندہ اس کو کثرت سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھے توجہ سے, قرضے اتر. قبلہ ہمارے یہاں نوجوان نسل ہمارا یوتھ اثاثہ ہے اور پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے, لیکن یہاں پہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نیو کپلس جتنی شادیاں ہو رہی ہیں, طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے. تو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے کہ جو نوجوان نسل ہماری ہے وہ اپنے گھروں کو خوشگوار بنا سکے اور ان کے گھر میں خیر و برکت رہے, اس والے سے کوئی رہنمائی کیجیے. کتابی دنیا کا آدمی ہوں, 55 سے 55 تک کتابیں ہی پڑھ رہا ہوں. صحیح, علم کی کوئی حد نہیں. جی انگریز نے ہمارے لیے جو مسالے مقرر کیے تھے برے صغیر کے لیے, آپ وہ سنیے. جی, انہوں نے کہا جو بندہ یہ مسالے کھائے گا اسے غصہ نہیں آئے گا, ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا, وہ مریض نہیں ہوگا, وہ بیمار نہیں ہوگا, اور اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی. پودینہ, دھنیا, خشک آلو بخارا, املی, ٹماٹر, لیموں, کالی مرچ, دہی, سفید زیرہ, یہ ہمارے مسالے. اور جو ہم مسالے استعمال کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں یہ ان جگہوں سے آتے ہیں جہاں برف ہوتی ہے. لونگ, جلوتری, جائفل, دارچینی. تیز مسالے ہمارے لیے نہیں ہیں, یہ ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ان جگہوں کے لیے ہیں, جلوتری وغیرہ. جی جی, یہ تو ان لوگوں کے لیے. ہمارے لیے اگر یہ ہم نے اپنی غذاؤں میں مسالے پہ بدل دیں, طبیعتیں بدل جاتی ہیں. ایک اللہ کی نیک بندی مجھ سے کہنے لگی, بوڑھی تھیں, کہنے لگی بیٹے آئے ہاسٹل سے, بورڈنگ میں رہتے تھے 3 مہینے کی چھٹیوں میں, ان کی نظریں میں نے پھری دیکھی. میں نے بچوں کو ترغیب دے کے پھیکی غذائیں استعمال کرنی شروع کرا دیں, سادہ غذائیں. وہاں مسالے دار کھاتے تھے. کچھ عرصے کے بعد دیکھا بیٹوں کی نظریں بہترین ہو گئیں. واہ. ایک وظیفہ ہے, جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے, اس کا غصہ ختم, اس کے اندر جذبات ختم, اس کے خیالات پاکیزہ, اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے, سکون آتا ہے. ہر نماز کے بعد, ورنہ صبح شام, وضو بے وضو ہر حالت میں ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. صرف ساتھ ایک بڑا مسئلہ میں جو لوگوں نے شیئر کیا, وہ بے گھر لوگ, جو ان کا گھر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں گھر حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے, اس والے سے رہنمائی کر دیں. ایک صاحب نے مجھ سے بات کی, ایک عمل سے میں نے استنباط کیا, اس کو فائدہ ہوا, پھر کئی کو اور بتایا, ان کو فائدہ ہوا. پہلے عمل واقعہ سن لیں, پھر عمل بتاتا ہوں. ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں غربت, فقر, فاقہ, تنگ دستی ہے. آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر, ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ. اس نے عمل شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ کا نظام ایسا چلا کہ اس کے گھر میں اتنی وسعت آئی, تو حضور سے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں. میں نے اس سے کہا, مجھے کہنے لگا گھر نہیں ہے میرا. میں نے کہا سارا دن پڑھ السلام علیکم, اس کے بعد قل اللہ, پھر السلام علیکم, پھر قل اللہ, تیرا سارا دن وظیفہ یہی ہے, اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. گھر ہے نہیں. اب آپ سوچیں, گھر تو ہے نہیں, وہ کرائے پہ گھر پہ تھا نا. میرا اپنا ذاتی گھر ہے, میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ نیت کر. آپ یقین جانیے کچھ عرصے کے بعد اس کا مسکراتا چہرہ میں نے دیکھا, میں کام ہو گیا ہے. مجھ سے کہنے لگا, جی کیا غیبی نظام چلا, ہم دادا پر دادا سے کرائے کے مکان پہ آ رہے تھے. آپ کے اس عمل نے السلام علیکم, پھر قل اللہ, قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, یہ مسلسل سارا دن اس نے پڑھا. چند دن, چند ہفتے, چند مہینے, کچھ عرصہ پڑھا, اپنا گھر مل گیا, اور گھر خوبصورت, بہترین. واہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اتنے لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں, ماشاءاللہ دنیا آپ کے وظیفے جو ہے وہ عمل کرتی ہے, اور لوگوں کو الحمدللہ فیض بھی ملتا ہے. آپ کے ذاتی مشاہدات میں کون سے وظیفے ہیں, آپ کون سا, ہمیں راز میں سے کوئی ایک راز دے ہی دیں. 1984 میں ایک فقیر درویش سے میں نے بیعت کی, پھر اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا. اچھا. اور میرا عشق, میری محبتیں انہی کے ساتھ. 1991 میں ان کا وصال ہو گیا, جنت البقیع میں مدفون ہیں. سبحان. انہوں نے مجھے انمول خزانہ دیا تھا, میں نے وہ وظیفہ چھپوایا ہوا ہے, اپنی کے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے. انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2, یہ کائنات ہے, اور لفظ خزانہ ہے. اچھا. دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے. اصل بات یقین کی ہے. اگر یقین نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں, اور اگر یقین ہو تو ایک ہی ہستی سے سب کچھ ملتا ہے, انسان اگر یقین سے چلے, ورنہ بے یقین کا سب ختم ہو جاتا ہے. انمول خزانہ یقین سے پڑھے. اچھا, یہ جنات اور موکلات میں فرق کیا ہوتا ہے قبلہ؟ ایک ہی چیز ہے. اچھا. فرق نہیں, الفاظ کا فرق ہے. اچھا. اور موکلات فرشتے بھی ہوتے ہیں, وہ ایسے. اس کی ایک مثال سناتا ہوں. ایک مزدور تھا, وہ لوگوں کو سامان اٹھا کے لے جاتا تھا. ایک اسے معذور آدمی ملا, ہاتھ پاؤں لولے لنگڑے. اس نے کہا اپنے خچر میں مجھے بٹھا لے, تو میں جس طرف تیری منزل ہے میری بھی وہی منزل ہے, صحیح, تجھے پیسے دے دوں گا. اس نے بٹھا لیا. راستے میں ویران آیا تو وہ معذور آدمی نکلا, ٹھیک ٹھاک تھا, خنجر, میں تجھے مارتا ہوں. اس نے کہا تیرا مقصد مال ہے, مال لے لے. انہوں نے کہا نہیں, میرا اصول ہے
पहले बंदा मारता हूँ फिर मार लेता हूँ। अच्छा, तो बेचैनी और बेकली की कैफियत में इसने नफिल पढ़े और नफिल में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अचानक ये आयत आई, अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुने। बेचैन दिल, हाँ याद रखिएगा, मजलूम के पास इसमें आजम नहीं होता, यकीन आजम होता है और बेचैन दिल होता है। वाह 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 वाह, बेचैन दिल। वाह वाह, उसने जब बेचैनी के साथ पढ़ा ना, तो ये अब गुर्ज मारने लगा, अर्शों से आवाज आई ठहर जाओ। फरिश्ता आया, उसने उस जालिम को गुर्ज मारा, जहां गिरा उस पर आग लगी, और वो फरिश्ता जाने लगा तो उससे पूछा मेरे आका आप कौन है? कहा मैं इस आयत का गुलाम और मुवक्कल हूं। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह पाक चाहे मेरी आपकी मदद फरिश्तों के जरिए करा दे, जिन्नात के जरिए करा दे, खुद बेअख्तियार नहीं, अल्लाह ने दुनिया को असबाब की दुनिया बनाया। सर ये कर्जा लोगों पर चढ़ा हुआ है, लोग बहुत मकरूज हैं, कर्जा उतारने के लिए कोई वजीफा इनात करें ताकि लोगों की राहत हो सके, आसानी हो सके। उसके लिए एक बेहतरीन वजीफा है कि हर हफ्ते अपनी फैमिली को आउटिंग और खाना जरूर खिलाएं। अच्छा, कर्जा लेके बैंक से क्रेडिट कार्ड चीजें करके शॉपिंग, बैंक से खाना और पहाड़ों की सैर, ये सबसे पहले, और ब्रांड की चीजें जरूर इस्तेमाल करें, कर्जे वाले खास तौर पे, कर्जा खत्म हो जाएगा। इसकी हिकमत बताएं किबला। इसकी हिकमत यह है कि अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाए, जमाने को देख के अपने ऊपर मकरूज हो जाए। मेरी आका ने यहां तक फरमाया, मेरे हुजूर ने, बहता पानी है तो भी एहतियात से पानी को वजू कर। अल्लाह अल्लाह, बहता पानी है, मेरी आका ने फरमाया। हमारी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, जरूरियात नहीं बढ़ी, और ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है। सही, एक तो अपनी जरूरियात पे कंट्रोल, नजर रखें, हम जमाने को देख के ना चलें, अपनी कैफियत को देख के चलें। ठीक है, मैं दरखास्त कर रहा हूं अपने सब मुखलिसीन से। दूसरा, कर्जे के लिए एक दुआ है जी, अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका मन सिवाक। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है, जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्जे उतरते हैं, और यहाँ तक उतरते हैं रब गनी कर देता है। और यहाँ तक गनी करता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे भी आए हैं कि एक साहब मुझसे कहने लगे आप मुझसे इस दुआ की इजाज़त वापस ले लें, मैं अब गिन नहीं सकता। अच्छा, कर्जे गए, गनी हो गया। वाह, और फिर जो बंदा इस दुआ पढ़ेगा वो गनी भी हलाल और तैयब ताहिर माल से होगा। सुभान अल्लाह। इस दुआ में वादा है, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के खजानों में देख रहा हूँ कि तेरे लिए कोई रिस्क का जर्रा, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा। मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूँ। जुमे का दिन था, सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे, मेरे घर में चींटियां और मकोड़े कीड़े नहीं है, तो इस बात की दलील है घर में कोई जरा ही नहीं गिरता। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, मैं बसरा में उनके पास हाजिरी मेरी हुई, एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज करने लगा, शेख घर में फक्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज कहे थे वो लफ्ज कुछ और थे, ये शेख मेरे घर में चींटियां और मकोड़े कीड़े नहीं हैं, तो इस बात की दलील है घर में कोई जरा ही नहीं गिरता, इतना फाका है, मकोड़े जर्रे मेरे घर में नहीं है, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया, उसने अपनी ज़ुबहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई, कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमद लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज की उस साइल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया, इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया, मेरे दुआ फरमा दे और मुझे भी दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नजर की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा, जिसको मिला है एतमाद में मिला है, और जिसको मिला है भरोसे में मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हजरत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया मुझे तेरी दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़बो-हाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूं। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के खजानों में देख रहा हूं कि तेरे लिए कोई रिस्क का जर्रा है, कोई रिस्क का दरवाजा है, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक दूर रोशनी नजर आ रही है, और वह है 10 मुहर्रम का आशूरा का दिन, एक तेरे लिए रोशनी है, वो नजर आ रही है। अगर तू उस पे मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिस्क, वुसअत, बरकत के दरवाजे। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया, और वो बेचारा जो मायूसियों में चला गया था उसके अंदर कुछ जान और रमक आई। तो कहने लगा, हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं? फरमाया, रोजी कर, मेहनत कर, रोजी कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा
आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है, वो चला गया। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। और मैं अब जितने पैसे तेरे पास हैं, उसने कहा चंद दिरहम है, और मैं बहुत हैं, चंद दिरहम ऐसा कर, घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम, ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम घर वालों पे खर्च कर। क्योंकि आका का फरमान है, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिस्क देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा, तो अल्लाह जल्ल शान हो उसकी नस्लों को फक्र फाके से बचाएंगे और अल्लाह उससे राजी होंगे और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। आपने उसे वादे सुनाए और वह चला गया। साल के बाद आया तो देखा कि एक दूर से एक शख्स है जिसके साथ 3 ऊँटनियां हैं, एक पे खुद बैठा है, 2 पीछे चल रही हैं। उसने आके ऊँटनियां बिठाई, बिठाने के बाद जब शेख के पास करीब आया तो शेख ने पहचाना ये तो वही शख्स है, लेकिन आज इसकी हालत बदली हुई है, इसके नक्शे बदले हुए हैं, इसकी कैफियतें बहुत ज्यादा बदली हैं। क्या हुआ? उसने आके सलाम अर्ज किया, अदब से बैठा और कहने लगा, हुजूर आपके अमल ने मुझे रंग दिया। मेरा जरा जरा का कमाया हुआ था, मेरा जरा जरा का हलाल जमा किया हुआ था, उस जरा जरा के जमा किए ने मेरे लिए हैरत अंगेज रहमत और बरकत के दरवाजे खोले। आपने फरमाया, ये जो ऊँटनी जिस पे बैठ के आया हूं फलां नस्ल की आला ऊँटनी है। एक शख्स को मैंने देखा, वो आवाज लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को खरीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूं। तो मैंने उससे पूछा कि इस ऊँटनी के बारे में तुझे क्या ऐब है, तू इसे जबरदस्ती आकर क्यों बेचना चाहता है? कहा वो खामोश रहा, कहा कि मियाँ अगर लेना है तो ले लो वरना हम चले। कहा नहीं बताएं। जब मैंने इसरार किया, कहा कि मैंने इस ऊँटनी के बारे में, इस ऊँटनी का ख्वाब देखा अपने बारे में, इसको ख्वाब में देखा, अपने बारे में देखा कि मेरे लिए ये ऊँटनी मुआफिक नहीं है और मैं किसी ऐसे शख्स को बेचूं जो जरूरतमंद हो, चाहे वो उधार ले ले। और कहा वो जबरदस्ती मुझे कहने का तुम ले लो। मैंने कहा मेरे पास 1 दिरहम भी नहीं है, 1 दिरहम तो 1 दिरहम 1 दौनिक भी नहीं है, 1 औकिया कुछ भी नहीं है। कहा कुछ नहीं है, ऊँटनी ले लो, इसे बेचो, जो मुनाफा मिले तुम ले लेना, जितनी की बिके मुझे दे देना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। कहा जबरदस्ती ऊँटनी के लगा मुझे देके चला गया। कहा मैं परेशान हुआ तो अचानक मेरे दिल में आवाज आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। बस उस आवाज ने मुझे तसल्ली दी और उस आवाज से मैं मुतमईन हुआ और कहने लगे कि बस मैं फिर उस ऊँटनी को लेके चला शाम तक। एक साहब ने देखा, कहा वाह ऐसी जबरदस्त ऊँटनी कहां से ली? मैंने कहा बेचनी है, वाकई बेचनी है, ये तो बहुत आला नस्ल की है, ये लोग तलाश करते हैं, ये तुम कितनी की लोगे? कहा तुम कीमत लगाओ, तुम कितनी की लोगे? कहा कि उसने 500 दिरहम कहा। मैंने कहा नहीं, मैं 800 से कम नहीं दूंगा। कहा अपनी जबान पे पक्के रहोगे? कहा पक्का हूं। कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 800 दिरहम देता हूं। कहा कि मेरी लगाम नहीं पकड़ी जा रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। उसने मेरे हाथ कांपते देख के कहा क्या हुआ, तकलीफ हो रही है, कोई लर्जा हो गया? मैं क्या इजहार करूं, मैं तो 1 दिरहम को तरसता था और 800 दिरहम। कहा उसने मेरे हाथ से लगाम ले ली और मुझे खुद ऊँटनी बिठा लिया और पैदल जा रहा। अब मेरा नक्शा अजब बढ़ गया, अजीब हो गया। मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूं और मुझे ऊँटनी पे ले जा रहा है। घर गया, उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया, बड़ी इज्जत दी, ऊँटनी को खाना दिया और मुझे 800 दिरहम की थैली पकड़ा दी। कहा मैं परेशान, इसको लेके कैसे जाऊं? मैं मेरी परेशानी भाग गया। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा कि मैं फलां बसरा की, फलां गांव, फलां बस्ती, फलां जगह का रहने वाला। कहा मैं पहुंचाऊंगा। उसने ऊँटनी में मुझे फिर बिठाया, खुद साथ बैठा और मुझे आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा। हालांकि उस वक्त वो मालिक था, मैं मालिक नहीं था। मुझे 800 दिरहम दे चुका था और मुझे घर पहुंचाया। कांपता हुआ जब मैं घर पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझे लर्जी की हालत में देखा तो परेशान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसे कांपती जुबान और हाँकते दिल, धड़कते दिल और हाथों की लग्जिश के साथ ये सारा वाकया सुनाया। कहा उसने 800 दिरहम की देखा ना तो एकदम परेशान हो गई। मैंने कहा कहीं मर ना जाए, मुझे खतरा हुआ। अब कहा कि उसमें से हमने 1 दिरहम निकाला। कभी थैली को देखते हैं, सारी रात नींद ना आई और इस 1 दिरहम निकाल के हमने घर का खर्च लिया। वो पहला दिन था जब हम पेट भर के खाना खा के और अच्छा खा के रात को सोए। अब मेरे अंदर परेशानी और बेचैनी थी। वो बेचैनी ये थी, जिसकी ऊँटनी थी उसको मैं पैसे दूं, कहां से ढूंढूं? वो तो देकर चला गया। अब मैंने जाके अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। जंगल में रोता था, 7 दिन मुसलसल में रोता रहा और घर आ जाता था, खाना साथ ले जाता था और फिर रोता था, अल्लाह मेरा दिन है, मुझे मालिक से मिलवा, मेरा दिन है, मुझे मालिक से मिलवा।
कहा कि जुमे का दिन था, सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे पे आवाज दी। मैं पहचाना कि वही बंदा है, देखा तो वही है। मैं गले लिपट गया, उसे रोया बहुत ज्यादा। मेरा मोहसिन था, मैं उसे चूम रहा था, मैं सर से पांव तक उसे चूम रहा था। कहा वो शर्मिंदा हो रहा था। तो मैंने उसे ये सारा वाकया सुनाया, ऐसे ऊँटनी दी, ऐसे एक बंदा मिला और उसने 500 और मैंने 800 दिरहम और उसने मुझे 800 दिरहम दिए। अब तक हम इसमें से 5 दिरहम खर्च कर चुके हैं, ये थैली है, ये आप इसमें से ले लें। कहा उसने उसमें से 250 दिरहम लिए। कहा ये मेरी ऊँटनी असल में 250 दिरहम की थी, बाकी तेरे हैं। कहा जब उसने कहा ना तेरे हैं, तो मैं एकदम परेशान हुआ कि इतने पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं। मेरे बाप दादा ने आज तक इतने पैसे नहीं देखे। गुर्बत तो मैंने विरसे में पाई थी, गुर्बत तो विरसे में पाई थी। तो कहा कि फिर मैंने वो थैली ली और फिर मैंने उससे कारोबार शुरू किया और उससे ऊँटों का कारोबार ही किया। और कहा कि अब आलम यह है कि मेरे पास ऊँटों का एक काफिला है, एक रेवड़ है और बहुत अच्छी नस्ल के हैं। मैं 3 ऊँटनियां लाया हूं, इन तीनों के पीछे हदाये हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। हजरत ने उसे लंगर खाने में दे दिया, जमा करा दिया और वो कई दिन हजरत की खिदमत में रहा और चला गया। मेरे आका का फरमान, इस सारे वाक्य का निचोड़ मेरे आका का फरमान सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे दिल खोल कर खर्च करे, रिज़्क़ हलाल में से, तय्यब ताहिर में से, रिज़्क़ हलाल में से, तय्यब ताहिर में से खर्च करे, उसकी जिंदगी में कामयाबियां और इसी तरह आती है। मेरे हुजूर के एक एक फरमान में सच है, हकीकत है, हकीकत है। अगर जिंदगी के सबक में आगे बढ़ना है, कामयाबियां आगे और सबकत ले जाना है, तो इन फरामीन पे अमल करें। ये जो छोटी चीजें मैंने आपकी खिदमत में